This video we are going to learn about the channels of distribution. Friends, we are going to cover in this video are about the channel of distribution, importance, functions and type of distribution channels. What is a channel of distribution? Channel of distribution set the route or the pathway of the product or service flow after production. प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका, नाउ प्रोडक्ट को भेजना है कंज्यूमर तक. किस तरह से आप प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे कंज्यूमर तक, उसके लिए वी नीड द इंटरमीडियरीज, द मिडल मैन, दे आर नोन एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. So a channel of distribution comprises a set of institutions which perform all of the activities utilized to move a product and its title from production to consumption. It is a set of interdependent organizations that are involved in the process of making the product or service available for use or consumption. It also ensures the flow of goods and services in smooth and sequential way. The channel of distribution are so important because the decision about the marketing channels are among the most critical decisions of the management. They also create market for new products. Not only serve the market, they make markets. जो चैनल आपने चूज करे दे इफेक्ट द अदर मार्केटिंग डिसीजंस ऑल्सो. फर्म की सेल्स डिपेंड करती है हाउ दीज डीलर्स, these middlemen are trained and motivated. They also act as a communicating agent. Now discussing the functions of the channel of distribution, the first main important function they are performing is the contact between producer and the consumer. They help to collect the useful information regarding the product and the behavior of the consumers. Next is satisfaction to the consumer, as channel of distribution provide various services and supplying the products in different varieties, color, size as per their taste and preferences. They help to satisfy the consumer. Next is transferring the title. Channel of distribution deliver the right product at right place at right time and at the right price to the consumer. Next is fixing prices. Distribution channel provide time to time information related to market prices, competition to the manufacturers. Next is performing promotional activities. Distribution channel also perform various promotional activities like advertising, sale promotion, personal selling, etc. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो तरीके से फाइनेंस फंक्शन को मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट इज जो कि एडवांसेस दे सकते हैं प्रोड्यूसर को एट द टाइम ऑफ गिविंग द ऑर्डर्स. सेकेंड इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी टू द कंज्यूमर्स. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ distribution. They help to solve the problem of selling. Means जो सेल करना है वो सारा का सारा काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन लाकर देनी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सर्विस, क्वालिटी प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो एक लिंक की तरह काम करते हैं between the producer and the consumer. As they have the complete knowledge about the consumer behavior and the marketing conditions, they communicate all this information to the producers, जो कि आगे उन्हें कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन में हेल्प करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है टू द प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो गिविंग दैम द necessary information. Next is creating time and place utilities. टाइम यूटिलिटीज मीन्स प्रॉपर प्लेस पर और प्रॉपर टाइम पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं as per the needs and requirements of the consumers. So place utility shows the location where the customer can buy it, and time utility when the product is available to the customer. So we can say that intermediaries provide value to producer because they often have expertise in certain areas that producer do not have, and intermediaries are experts in displaying, merchandising and providing convenient shopping locations and hours for customers.
Types of distribution channel. We have two types of distribution channel. First is conventional, second is non-conventional. In conventional, we have further two parts, direct and indirect. In non-conventional, we have further two parts, vertical and horizontal channel of distribution. Now, what is the conventional distribution channel? कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ये एक assumption है कि हर एंटरप्राइज सेपरेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड कंसर्न है. दैट मीन्स वो एक सेपरेट बेसिस पर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है. वी हैव हियर फोर सब पार्ट्स, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल एंड मल्टी लेवल, जिसको हमने रीग्रुप करा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में. First is the direct distribution channel. It is the oldest, simplest and shortest distribution channel. इस चैनल में प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. In indirect distribution channel, the manufacturer sells his products with the help of intermediaries. Means जो whole process है, it looks like a chain. We have further subgroups of indirect distribution channel. First is one level channel. Here manufacturer sell the product to retailer, retailer sell the product to customers. Two level channel where we have two intermediaries, manufacturer, wholesaler, retailer and customer. Three level where manufacturer, agent and distributor are there, then wholesaler, then retailer and then customers. And further we have multi level channels जहां पर आपके बीच में इंटरमीडिएट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मल्टी लेवल्स आर देयर. Next is the non-conventional channels of distribution. Non-conventional channels और integrated channels वो channels हैं जहां पर channel component participate करते हैं in full coordination and cohesion with each other. यहाँ पर कोई भी separate distinct identity नहीं है, सभी एक unified manner की तरह काम करते हैं. These are of two types. First is vertical distribution channel, next is horizontal distribution channel. जो vertical distribution channel है, that is a result of failure of conventional channel. जहाँ पर independent जो लोग थे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते थे और हर पर्सन को अपने ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना था, किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था. जबकि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या है, द मेन मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क टुगेदर एज अ यूनिफाइड ग्रुप in order to meet the consumer needs. The first is corporate system. Here a single firm owns both production and distribution facility. There is no separate distribution channel there. यहाँ पर फर्म खुद ही प्रोड्यूस कर रही है और खुद ही फर्म के पास रिटेल आउटलेट्स हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है. Here the company has maximum control over the marketing of its product. For example, you have टाटा, बिरला, गोदरेज, बाटा, ये सब. Next is administered vertical system. Administered vertical system channels जो हैं वो हैं coordination of all the functions of production and distribution achieved through the use of programmed developed by one or the number of limited firms throughout the whole मार्केटिंग सिस्टम. यहाँ पर एक फर्म डेवलप करती है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज और दूसरी फर्म एग्री करती है टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट इज कंट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम और चैनल. यहाँ पर हम जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट चैनल कंपोनेंट्स जो है वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड टू इंक्रीज द मार्केटिंग इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने फाइनेंसिंग, एडवर्टीजिंग, सेंट्रलाइज्ड बाइंग के लिए वी मेक कंट्रैक्ट्स. Horizontal distribution channel, two or more companies join hand to exploit marketing opportunities either by themselves or by creating an independent unit. For example, Maruti Udyog is manufacturing cars and HDFC Bank are providing the financial facility. They both join hands एंड यहाँ पर क्या है कि कस्टमर को 0% फाइनेंस पर या लेस रेट्स पर जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं कार्ड्स.
तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Next are the factor affecting the channel choice. Here the first consideration is the product consideration. Product consideration में हम आगे further पढ़ रहे हैं the nature of the product. अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल नेचर का है तो आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड है तो आप इसके लिए इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द पेरिशेबिलिटी. अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है लाइक फ्रूट है, मिल्क है, बटर है, तो आप डायरेक्ट इसे कंज्यूमर को बेच सकते हैं या शॉर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर सकते हैं. वेयर एज अगर नॉन पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है तो आप वाइडर चैनल यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट वैल्यू. अगर आपके प्रोडक्ट की हाई यूनिट वैल्यू है लाइक डायमंड ज्वेलरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, तो आप इसे सेल करेंगे डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. वेयर एज अगर प्रोडक्ट की लेस यूनिट वैल्यू है, हाई टर्नओवर है, तो आप इसे इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द वेट एंड टेक्निकलिटी. अगर प्रोडक्ट बल्कि है, लार्ज इन साइज है, टेक्निकल इन नेचर है, देन आप डायरेक्टली इसे यूजर्स को सेल कर सकते हैं. वेयर एज अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइट वेट है, स्मॉल इन साइज है, सिंपल प्रोडक्ट है, तो आप लेंथी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज. अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, मतलब हर यूनिट सिमिलर है इन शेप, साइज, वेट, कलर या क्वालिटी, तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं. वेयर एज अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है तो आप इसके लिए डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट लाइन. अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स विद ग्रेट कंसिस्टेंसी, देन company should sell directly through their own multiple shops or authorized retail shops. Whereas if a manufacturer sell the product with only one item, he may use wholesaler or retailer to sell the product. Next is the seasonality. When the product is subject to seasonal variations, then it is desirable to appoint sole selling agents. Next is the market considerations. Market considerations are the consumer considerations related to their buying habits, location of the market, size of the order, etc. So, first consideration is consumer or industrial market. That means the nature of the market. अगर industrial market है तो you can directly sell the product. There is no need for retailers. But अगर ये product it is meant for consumers, then wholesalers or retailers may be used. Next is the number of customers. दैट इज़ द साइज ऑफ द मार्केट. अगर नंबर ऑफ कस्टमर छोटे हैं देन आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो. बट अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है, स्मॉल हैं, तो आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है और आप अपने कस्टमर को ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन बी यूज. बट अगर आपके कस्टमर स्कैटर्ड हैं तो पॉसिबल नहीं है उन्हें कॉन्टैक्ट करना, तो लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल रहेगा. नेक्स्ट इज द बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स डिपेंड करती है देयर विलिंग टू स्पेंड, देयर प्रेफरेंसेस, देन द साइज ऑफ देयर कंज्यूमर बजट एक्सेट्रा. तो बाइंग हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द ऑर्डर. डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपका साइज ऑफ द ऑर्डर जो है दैट इज़ बिग, एज इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जहाँ पर कंज्यूमर परचेज जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में है, फ्रिक्वेंटली है, रेगुलर है, तो आप इसके लिए लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ द नीड ऑफ द प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट नीड है, प्रोडक्ट की नीड है फॉर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस, होलसेलर्स विल बी रिक्वायर्ड. अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है फॉर हाउस होल्ड कंज्यूमर, देन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बोथ आर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज द कंपनीज कंसिडरेशन. चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है कंपनीज के करेक्टरिस्टिक्स पर, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर, रेपुटेशन पर, पास्ट चैनल एक्सपीरियंस पर, करंट मार्केटिंग पॉलिसीज पर, प्रोडक्ट मिक्स पर. तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट इज द साइज ऑफ द कंपनी. कंपनी का साइज क्या है. कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो अपने ही रिटेल आउटलेट्स ओपन कर सकती है. अगर कंपनी
बिग मैन्युफैक्चरर है, तो अगर कंपनी स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल रेंज है उसके पास प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट लाइन छोटी है, तो वो होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। नेक्स्ट इज पास्ट चैनल एक्सपीरियंस। कंपनी का चैनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। कंपनी ने फॉर एग्जांपल पिछले साल डायरेक्ट चैनल यूज़ किया था, तो इस साल भी वो डायरेक्ट रखना चाहेगी या इनडायरेक्ट कर लेगी। इट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज, वट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब। नेक्स्ट इज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। अगर कंपनी की गुड रेपुटेशन है, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट मिक्स। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट द कंपनीज आर गोइंग टू ऑफर। अगर कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स जो है वो बहुत वाइड है, कंसिस्टेंट है, ग्रेटर होमोजिनिटी है, तो वो सेम मार्केटिंग चैनल्स को यूज़ कर सकती है। Next is the marketing policies. What marketing policies they are going to adopt? Companies' marketing policies like their speedy delivery, after sale services, heavy advertisement, uniform retail price, ये भी influence करता है channel of distribution को. Next is the marketing experience. What type of मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड मैनेजरियल एबिलिटी द कंपनी इज हैविंग। अगर कंपनी लैक करती है मार्केटिंग एक्सपीरियंस और मैनेजरियल एबिलिटी में, तो कंपनी शुड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू मिडलमैन। और अगर कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, सफिशेंट मार्केटिंग एक्सपीरियंस और मैनेजरियल एबिलिटी है, तो कंपनी इटसेल्फ ही अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। The choice of channel of distribution also depends upon the strength and weaknesses of different type of middlemen performing various functions. So some important middleman considerations are: first is availability of middlemen. Right type of middleman जो है, that is an important consideration in making this decision. कंपनी को एफर्ट करने चाहिए टू सेलेक्ट द एग्रेसिव ओरिएंटेड मिडलमैन। अगर इन केस अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कंपनी को खुद ही अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ मिडलमैन। अगर मैन मिडलमैन का एटीट्यूड है टू फिक्स their own prices for the product and the company agrees to allow them to do so, then they can very happily agree to sell the product. On the other hand, अगर कंपनी फॉलो करती है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पॉलिसी, तो चॉइस लिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडलमैन। किस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट की नेचर कहती है कि इट रिक्वायर्स आफ्टर सेल सर्विसेज, रिपेयर फैसिलिटीज़ लाइक योर मोटो ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, स्कूटर्स, कंप्यूटर्स हैं, देन ओनली दोज मिडलमैन शुड बी अपॉइंटेड जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ चैनल। चैनल कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होती है। अगर आपका चैनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपका कंज्यूमर एंड पर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल। In selecting the channel of distribution, company should know the capability of middleman in order to ensure a targeted sales volume. Sales volume कितना वो चाहते हैं कि हो। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एबिलिटी। अगर मिडलमैन का गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो दे कैन प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू कंज्यूमर, ऑल्सो मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट्स टू द मैन्युफैक्चरर। सो मैन्युफैक्चर जो है, प्रोड्यूसर जो है, दे शुड ऑल्सो कंसिडर द फाइनेंशियल एबिलिटी while selecting the intermediaries for their product. Selection of the channel of distribution is not as easy as we can say. It needs to reconsider a long list of factors that we have discussed here. That's all about this lecture. Thank you very much.